everyone. Today I am starting here exercise 6.2. Already I started there. I completed up to the second example. Now I am starting third example here. Here third example as here y is equal to a cos of log x plus b sin of log x. Okay, here solution. Let y is equal to write down as a cos of log x plus b sin of log x. Okay, here write down as it is equation number 1. Now look here, formation of differential equation means what we have to do. Number of arbitrary constant in a given equation is equal to the, we have to take the number of differentiation. In given example there are two arbitrary constants a and b. Therefore we have to differentiate the given equation two times. Okay, therefore first write down here differentiate with respect to x. Therefore derivative of y with respect to x, it is a dy by dx, which is equal to, now here on RHS there is a addition of two terms. Therefore take the derivative of each term separately, but both terms are in a composite फंक्शन. ओके, दोनों टर्म हमारे कंपोजिट फंक्शन के फॉर्म में है. तो किस तरह से लेना है यू नो. यहाँ फर्स्ट इसी का डेरिवेटिव ए एज इट इज, यहाँ log x है, cos ऑफ log x. log x को माइंड में x सपोज कर दो, दिस बिकम एज अ cos x. तो डेरिवेटिव ऑफ cos x इट इज अ माइनस sin x, बट x मीन्स log x into derivative of that term which we have to suppose as a x means d by dx of log x. तो क्या आ जाएगा 1 upon x plus b as it is. Now same here, log x suppose as a x, then this function become as a sin x. Derivative of sin x it is a cos x, but x means log x into d by dx of log x, that is a 1 upon x. Now I am taking 1 upon x as a common. ओके, ये dy by dx एज इट इज रहेगा. हियर इन ब्रैकेट माइनस a साइन ऑफ log x प्लस b इंटू कॉस ऑफ log x. दिस ब्रैकेट कंप्लीट. नाउ शिफ्ट दिस 1 upon x on LHS. therefore x into dy by dx is equal to minus a साइन ऑफ log x plus b into cos of log x. Again we have to differentiate with respect to x. Therefore write down here again differentiate with respect to x. Now on LHS also we have to differentiate, but in LHS there are two terms and in the form of products. Therefore you have to use product rule here, u into v. यहाँ u into v अप्लाई करोगे. ओके, तो यहाँ लिखोगे d by dx of x into dy by dx, which is equal to, here also write down d by dx of minus a into sin of log x. This bracket come please. d by dx of a plus as it is d by dx of b into cos of log x. ये भी ब्रैकेट में लिख दो. देन यहाँ u into v अप्लाई करोगे. ओके, x as it is डेरिवेटिव ऑफ v. v मीन्स dy by dx, तो dy by dx का डेरिवेटिव d2y by dx स्क्वायर आ जाएगा प्लस dy by dx एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ x with respect to x, that is a 1 आ जाएगा, which is equal to here minus a as it is. same way फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ दिस. यहाँ हमने फाइंड आउट किया था साइन ऑफ लॉग एक्स का क्या जाएगा cos of log x into derivative of log x, that is a
1/x. ओके, अब यहाँ कॉस है तो कॉस का डेरिवेटिव निगेटिव आ जाएगा, देयरफॉर राइट डाउन माइनस साइन. यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा बिकॉज डेरिवेटिव ऑफ कॉस निगेटिव आ जाएगा माइनस साइन एक्स. ओके, तो ये माइनस साइन ऑफ सॉरी बी रहेगा माइनस बी साइन ऑफ लॉग एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स इट इज 1/x. नाउ ये LHS एज इट इज ही रख दो, x इंटू d2y/dx स्क्वायर प्लस dy/dx एज इट इज विच इज इक्वल टू आई एम टेकिंग -1/x एज अ कॉमन इन ब्रैकेट. ये क्या हो जाएगा a cos ऑफ log x प्लस b sin ऑफ log x. Okay, this bracket complete. Now this bracket means it is your example and it is nothing but y. तो यहाँ इक्वेशन 1 लिखा है, therefore I am writing here -y/x. तो यहाँ लिखोगे by 1. ओके, तो ये x इंटू d2y/dx स्क्वायर प्लस dy/dx इज इक्वल टू -y/x. ये ब्रैकेट मीन्स y है. अब ये x इधर शिफ्ट कर देंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो LHS के जितने भी टर्म है उतने टर्म को मल्टीप्लाई कर देगा. देयरफॉर डायरेक्टली आई एम राइटिंग हियर x इंटू एक्स, तो ये x स्क्वायर हो जाएगा d2y/dx स्क्वायर प्लस x इंटू dy/dx और ये माइनस वाई RHS में है तो LHS में शिफ्ट कर दोगे प्लस y हो जाएगा इज इक्वल टू 0. इट इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन. आर यू गेटिंग? समझ में आ गया? तो ये हमारा आंसर है. इट इज द आंसर. ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल. Example number 4. Example 4 क्या है? y स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस c ब्रैकेट क्यूब. ओके, तो यहाँ कांस्टेंट क्या है? c कांस्टेंट है एंड इट इज ओनली सिंगल कांस्टेंट. तो एक कांस्टेंट है तो एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट इज अ c, तो वो रिमूव करना है. तो यहाँ हम डिफरेंशिएट कर देंगे. सॉल्यूशन y स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस c ब्रैकेट क्यूब. यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. ओके, तो यहाँ y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y इंटू dy/dx इज इक्वल टू, अभी इसी को हम माइंड में एक से सपोज करेंगे तो ये x क्यूब हो जाएगा. x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, तो ये x प्लस c ब्रैकेट स्क्वायर आ जाएगा इंटू dy/dx ऑफ x प्लस c. x का डेरिवेटिव 1 और c इज अ कांस्टेंट तो उसी का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा. तो यहाँ मैं नहीं लिख रही है बिकॉज डेरिवेटिव ऑफ x एज अ 1 आता है. ओके, तो यहाँ देखो 1 प्लस 0 आ जाएगा. ओके, तो ये 1 प्लस 0 1, इसलिए हम नहीं लिखते हैं. लेकिन हमारा ये c तो रिमूव नहीं हुआ है. देन हमको c रिमूव करना है तो किस तरह से करोगे? व्हाट वी हैव टू डू, किस तरह से करना है? तो ये हम एज इट इज लिखेंगे 2y इंटू dy/dx इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स प्लस सी ब्रैकेट स्क्वायर. अब क्या करेंगे? नाउ लुक हियर, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है मीन्स एग्जाम्पल, उसी को हम सेकंड इक्वेशन से अगर डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाता है? आई एम राइटिंग इट इज अ 1 एंड इट इज अ सेकंड. ओके, तो यहाँ y स्क्वायर, अभी मैं फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर रही हूँ, y स्क्वायर अपॉन 2y इंटू dy/dx इज इक्वल टू x प्लस सी
ब्रैकेट क्यूब अपॉन 3 इंटू एक्स प्लस सी ब्रैकेट स्क्वायर. ओके, देयरफॉर वाई स्क्वायर अपॉन, देखो यहाँ y है तो एक y कैंसिल हो जाएगा, y अपॉन 2 dy/dx आ जाएगा, विच इज इक्वल टू, यहाँ से ये एक कैंसिल हो जाएगा, मीन्स एक ही रहेगा, तो ये x प्लस सी रह जाएगा अपॉन 3. ओके, नाउ अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो यहाँ इम्प्लाइज कर देंगे, यहाँ लिखेंगे डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2. ओके, अभी ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, 3y विच इज इक्वल टू 2 इंटू dy/dx इंटू एक्स प्लस सी. ओके, देन ये 3y माइनस 2x इंटू dy/dx मल्टीप्लाई कर रही है. ओके, हाँ इस तरह से कर सकते हैं, विच इज इक्वल टू ये 2 dy/dx इंटू सी. तो c की वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है, वैल्यू ऑफ c की वैल्यू क्या है वो देख लो. c एलिमिनेट होना चाहिए, एट एनी कॉस्ट वी हैव टू एलिमिनेट द c. तो किस तरह से एलिमिनेट करना है वो थोड़ा सा हमको थिंकिंग करना होता है. देन हाउ टू रिमूव c, सोच लो थोड़ा सा. अभी ये जो c है यहाँ से 2 dy/dx है, या तो 1 मिनट, यही जो इक्वेशन है ये dy/dx एज इट इज, मैं क्या कर रही है, ये इम्प्लाइज 3y अपॉन 2 dy/dx एज इट इज, और ये x प्लस सी. ओके, तो यहाँ ये x इधर शिफ्ट कर देंगे, 3y अपॉन 2 dy/dx माइनस x इज इक्वल टू सी. अभी ये c की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट ऑन कर सकते हैं. ओके, dy/dx की टर्म तो हमारी आ गई है, इट इज इक्वेशन नंबर 3. अभी ये c की वैल्यू हम 1 में पुट ऑन कर देंगे. पुट c, वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन नंबर 1. एनी हाउ हमको c रिमूव करना है. ओके, देयरफॉर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस, यहाँ c की वैल्यू क्या है, 3y अपॉन 2 इंटू dy/dx माइनस एक्स. ओके, और इसी का क्यूब है. देखो इक्वेशन नंबर 1 में c का वैल्यू पुट ऑन किया, ये वाई स्क्वायर एज इट इज विच इज इक्वल टू, ये x प्लस सी ब्रैकेट क्यूब है, तो x प्लस c का वैल्यू ये है 3y अपॉन 2 dy/dx माइनस एक्स, और ये होल ब्रैकेट क्यूब, ये x कैंसिल हो गया. ओके, तो ये क्या आ जाएगा, इम्प्लाइज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू इसी का क्यूब 3y अपॉन 2 इंटू dy/dx, इसी का क्यूब करना है. बस क्यूब करके शिफ्ट कर दो, तो इक्वेशन क्या आ जाएगा, ये वाई स्क्वायर एज इट इज विच इज इक्वल टू ये 3/2 उसी का क्यूब, मीन्स 27 अपॉन 8 वाई क्यूब अपॉन ये dy/dx इसी का भी क्यूब. ओके, अभी इधर वाई स्क्वायर है, यहाँ वाई क्यूब है, तो ये वाई स्क्वायर इसी को कैंसिल हो जाएगा, या तो वाई स्क्वायर ये 8y स्क्वायर इंटू dy/dx होल ब्रैकेट क्यूब इज इक्वल टू 27y क्यूब.
ओके, ये वाई स्क्वायर यहाँ के वाई स्क्वायर को कैंसिल हो जाएगा, मीन्स 27y आ जाएगा। तो ये 8 dy बाई डी एक्स ब्रैकेट क्यू इज इक्वल टू 27y। इट इज़ अ रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमारा रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है। ओके, एग्जाम्पल नंबर 5 ये सेम एज इट इज है जो कि एग्जाम्पल नंबर 3 था। y इज इक्वल टू a इंटू ई रेस टू 5x प्लस b इंटू ई रेस टू -5x। ये सेम एग्जाम्पल नंबर 3 के जैसा ही है, आप सॉल्व करोगे। ओके, आप सॉल्व करोगे। नाउ आई एम टेकिंग हियर एग्जाम्पल नंबर 6 एग्जाम्पल। ये 5th आप सॉल्व करना है। y माइनस a, ये ब्रैकेट में है, स्क्वायर ऑफ दैट विच इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स माइनस बी। इसी का डिफरेंशियल इक्वेशन प्रिपेयर करना है। हाउ मेनी आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स आर हियर? a एंड b। ओके, तो यहाँ 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, देयरफॉर वी हैव टू टेक हाउ मेनी टाइम्स डिफरेंशिएशन? 2 टाइम्स। 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करोगे। ओके, तो डिफरेंशिएट करना है। सॉल्यूशन y माइनस a ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स माइनस बी। डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। देयरफॉर ये y कंसिडर कर दो, इसी को y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? 2y। ओके, तो ये 2 इंटू वाई माइनस ए इंटू तो यहाँ इसी को y सपोज किया, y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ डी वाई बाई डी एक्स लिखोगे ही, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ y माइनस ए। तो y का डेरिवेटिव फिर से क्या आ जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, और a का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, विच इज इक्वल टू, अभी यहाँ ये 4 कांस्टेंट है, इसी का डेरिवेटिव, इसी को x सपोज कर दो, x सपोज कर दो, या तो डायरेक्टली भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर दो। 4x माइनस 4b, 4x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? विथ रिस्पेक्ट टू x 4 आ जाएगा, b का डेरिवेटिव 0। ओके, देयरफॉर ये y माइनस a, ये dy बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा? dy बाई डी एक्स होल ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ ये 2 2 ज़ा 4, तो ये 2 आ जाएगा। अभी यहाँ से a कैंसल नहीं हुआ है, एक ही वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। ओके, b हमारा रिमूव हो गया है, तो ये 1 टाइम हमने क्या किया है? डिफरेंशिएट किया है। अगेन वी हैव टू डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो यहाँ फिर से डेरिवेटिव लेना है, u इंटू वी डी बाई डी एक्स ऑफ y माइनस ए इंटू डी वाई बाई डी एक्स होल ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू, आर एच एस का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, 2 का डेरिवेटिव 0। ओके, तो इसी का डेरिवेटिव फाइंड आउट करोगे। देखो, ये u है, ये v, u एज इट इज, y माइनस a एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस। अभी ये कंपोजिट फंक्शन है, इसी को हम क्या सपोज करेंगे? x विथ रिस्पेक्ट टू जो रहता है वो सपोज करना है। ये मेरा x है,
तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो ये 2x, x मीन्स dy बाय dx इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ दैट टर्म विच वी हैव टू सपोज एज अ x। तो किसी के लिए x सपोज किया था, इसी के लिए, तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा d2y बाय डी एक्स स्क्वायर। आर यू गेटिंग? यस, समझ में आ गया क्या? देख लो। प्लस ये dy बाय डी एक्स होल ब्रैकेट स्क्वायर एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ y माइनस ए। तो y का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बाय डी एक्स आ जाएगा, और a का डेरिवेटिव 0 विच इज इक्वल टू 0। अब हम क्या कर देंगे, यहाँ भी dy बाय डी एक्स है, यहाँ भी dy बाय डी एक्स है, थ्रू आउट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो ये y माइनस ए, ये y माइनस ए एज इट इज, और ये 2 भी रहेगा, और d2y बाय डी एक्स स्क्वायर, थ्रू आउट dy बाय डी एक्स कॉमन निकाल दो और कैंसिल कर दो, प्लस dy बाय डी एक्स ये स्क्वायर है इक्वल टू 0। अभी फिर से हमारा यहाँ a एज इट इज है, देन तो ये रिमूव करना है। देन हाउ टू रिमूव द a किस तरह से रिमूव हो जाएगा। नाउ लुक हियर, ये जो फर्स्ट इक्वेशन था इट इज इक्वेशन नंबर 1, इट इज इक्वेशन नंबर 2। अभी यहाँ y माइनस ए है। ओके, तो बाय यूजिंग सेकंड इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, y माइनस ए which is equal to 2 upon dy by dx होल ब्रैकेट स्क्वायर। इक्वेशन 2 पर से हम क्या करेंगे, y माइनस ए की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे, और ये वैल्यू यहाँ पुट ऑन करो। इट इज अ इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ ये वैल्यू थर्ड इक्वेशन में पुट ऑन करेंगे। पुट वैल्यू ऑफ y माइनस ए इन इक्वेशन नंबर 3। ओके, तो इक्वेशन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन नंबर 3 है, इसी में y माइनस ए की ये वैल्यू पुट ऑन कर देंगे। तो ये 2 एज इट इज इनटू y माइनस ए मीन्स ये 2 अपॉन dy बाय डी एक्स होल ब्रैकेट स्क्वायर इंटू d2y बाय डी एक्स स्क्वायर, ओके, प्लस dy बाय डी एक्स ये होल ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू 0। मीन्स ये क्या आ जाएगा 4 अपॉन dy बाय डी एक्स होल ब्रैकेट स्क्वायर इंटू d2y बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस dy बाय डी एक्स होल ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अभी डिनोमिनेटर में है, ओके, तो इसी को रिमूव करना है। तो किस तरह से आ जाएगा 4 इंटू d2y बाय डी एक्स स्क्वायर, यहाँ इसी को मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस dy बाय डी एक्स रेस टू 4 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। इट इज योर डिफरेंशियल इक्वेशन। You have to check out your answer right or wrong. Wait, I am checking here. What is the answer? Example number, it is example number 6.
Okay. It is right. Now example number 7. Example number 7. Here y is equal to a plus a upon x. Okay. A solution. A radar. Y is equal to a plus a upon x. Here write down as a equation number 1. Differentiate करोगे. Differentiate with respect to x. Therefore, derivative of y with respect to x, it is a dy by dx. a का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा. ये a अपॉन x है, यहाँ मैं 0 लिखेगी. ओके. a इज अ कांस्टेंट, ये प्लस a इज अ कांस्टेंट, तो डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन एक्स इट इज अ माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर. ये डेरिवेटिव आ जाएगा. ओके. देन तो ये dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा. नाउ अभी ये रिमूव करना है. देन हाउ टू रिमूव द ए. ये किस तरह से रिमूव करोगे. नाउ लुक हियर, इट इज अ सेकंड. अभी यहाँ से ही हम a की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. लुक हियर, ये एक्स स्क्वायर इधर शिफ्ट कर दो. एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए. मीन्स a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स. इट इज अ सेकंड. अभी ये वैल्यू कहाँ पुट ऑन करना है, 1 में. पुट a इज इक्वल टू दिस, 1 में पुट ऑन करोगे. पुट a is equal to minus x square into dy by dx in equation number 1. Therefore, y is equal to, ये a की वैल्यू यहाँ फिलअप कर देंगे. देखो मैं a कॉमन ले रही है और यहाँ लिखेगी 1 प्लस 1 अपॉन एक्स. इज इट राइट. और यहाँ वैल्यू फिलअप कर देंगे माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dy by dx in bracket 1 plus 1 upon x. It is a y. Then y is equal to, multiply कर दो, minus x square into dy by dx. ये माइनस यहाँ x square से dy by dx, x square into dy by dx से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस x into dy by dx आ जाएगा. ओके. या तो आप एज इट इज रख सकते हैं इसी को. अभी ये टर्म इधर शिफ्ट कर दो तो ये किस तरह से हो जाएगा. इम्प्लाइज आई एम राइटिंग हियर, ये y यहाँ माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लो तो ये प्लस हो जाएगा x इंटू डी वाई बाई डी एक्स एज अ कॉमन. तो ये ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 0. इट इज अ रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन. ओके. या तो और आप यहाँ लिखोगे y प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0. इट इज अ रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन. ये लिख दो या तो ये. ओके. आई थिंक दैट back answer is wrong there. Next example, example number 8. Example number 8. Y is equal to c1 into e raised to 2x
plus c2 into e raised to 5x is there. I think that 5x. Okay. How many arbitrary constants are here? 2, 1 and 2. Okay, it is a solution. Here write down as a y is equal to c1 e raised to 2x plus c2 into e raised to 5x. Okay. It is इक्वेशन नंबर 1. इसी को हम इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर रहे हैं. देन टू आर्बिट्री कांस्टेंट है c1 एंड c2, तो 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करना है. डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. देयरफॉर y का डेरिवेटिव dy by dx which is equal to c1 is a constant, keep as it is, e raised to 2x. तो 2x को x सपोज कर दो तो e raised to x हो जाएगा. e raised to x का डेरिवेटिव e raised to x, but x means 2x into d by dx of that term which we have to suppose as a x. तो किसी के लिए x सपोज किया था 2x के लिए, तो 2x का डेरिवेटिव क्या जाएगा 2 प्लस यहाँ भी सेम उसी तरह से c2 is a constant, keep as it is, e raised to 5x. तो ये कंपोजिट फंक्शन है, पहले एक्सपोनेंशियल है बट हियर इज नॉट ओनली x, तो यहाँ 5x है तो ये कंपोजिट फंक्शन में जाएगा. तो ये 5x को x सपोज कर दो तो ये e raised to x हो जाएगा. e raised to x का डेरिवेटिव e raised to x, बट x मीन्स 5x into d by dx of that term which we have to suppose as a x. x किसी के लिए सपोज किया था 5x के लिए, तो 5x का डेरिवेटिव 5 मीन्स dy by dx which is equal to ये 2 into c1 e raised to 2x plus 5 c2 e raised to 5x. Here write down as a second. Okay, फिर से डिफरेंशिएट करोगे. अगेन डिफरेंशिएट with respect to x. तो dy by dx का डेरिवेटिव d2y by dx स्क्वायर which is equal to ये 2c1 as it is, फिर से इसी का डेरिवेटिव e raised to 2x into 2 आ जाएगा प्लस 5 into c2 as it is, ये e raised to 5x into 5 which is equal to 4c1 e raised to 2x plus 25 c2 e raised to 5x. Okay, it is a d2y by dx square. It is equation number 3. Observe the equation number 1, 2 and 3. Equation number 1, 2 and 3 ऑब्जर्व कर दो. तो देख लो यहाँ ये जो फर्स्ट इक्वेशन है यहाँ y है, सेकंड इक्वेशन dy by dx है और थर्ड इक्वेशन d2y by dx स्क्वायर. तो हम इसी का डिटर्मिनेंट लिख सकते हैं. ओके, तो इसी को डिटर्मिनेंट में हम लिख सकते हैं. y RHS भी देख लो, यहाँ c1 e raised to 2x है, यहाँ भी है c1 e raised to 2x है, तो ये 2 हम डाल देंगे. ओके, यस, समझ में आ रहा है? इस तरह से ही करना है. यहाँ लिखेंगे बाय यूजिंग इक्वेशंस 1, 2 and 3. तो यहाँ हर एक रो में it is a first row, it is a second row and it is a third row. तो ये जो इक्वेशन है RHS में c1 into e raised to 2x है, यहाँ भी c1 into e raised to 2x है, यहाँ भी c1 into e raised to 2x है. Means we have to consider it is a one of the variable. वेरिएबल किसी में कंसिडर कर सकते हो. दूसरे इसी में भी देख लो, दूसरे टर्म में c2 e raised to 5x, here also c2 e raised to 5x and here also c2 e raised to 5x. तो ये इक्वेशन क्या है? कंसिस्टेंट इक्वेशंस है. तो ये by using equation 1, 2 and 3 we can write डिटर्मिनेंट. तो यहाँ क्या आ जाएगा
फर्स्ट कॉलम में, ये फर्स्ट कॉलम किस तरह से LHS साइड y, दूसरा dy बाई dx और यहाँ d2y बाई dx स्क्वायर। अभी ये जो है ये सभी किस तरह से आ जाएंगे, ये लुक हियर, इट इज c1 e raised to 2x मीन्स इसी का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ भी 1 है। दूसरे इक्वेशन में इसी का कोएफिशिएंट क्या है 2 है, तो यहाँ 2 आ जाएगा और इसी का कोएफिशिएंट 5। थर्ड इक्वेशन में इट इज 4 और ये 25 एंड विच इज इक्वल टू 0। सिंस हियर वी हैव टू राइट, ये इक्वेशन कैसे हैं, इक्वेशंस ऑफ कंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट होता है तो इसी का डिटर्मिनेंट क्या रहता है 0 रहता है। यू स्टडीड इन अ डिटर्मिनेंट, ओके। Here we have to write as equations 1, 2, 3 in c1 e raised to 2x and c2 e raised to 5x are consistent. Therefore we have to take determinant of that as a 0. अब ये सॉल्व कर दो। हाउ टू सॉल्व द डिटर्मिनेंट यू नो।